Morning everyone, Assalamu alaikum and welcome to another episode of The Inside Scoop. As you guys must have noticed, my screen mujhse chheen li gayi hai because something exploded at the studio yesterday and so it's not working. So I'll be seeing the screen aap logon ke saath when I put up the charts. But anyway, yesterday the market closed a few hundred points plus. Jab se aapki Seas war announced hui hai between firstly India, Pakistan and then Iran, Israel. Everything has been a lot more relaxed. Why is the stock market going up? Aaj bhi is like 2,000 points plus, almost 1,800 thi last I checked. The reason is that so 2022 में पाकिस्तान एक बहुत बुरे हालात में था. There was inflation जो skyrocket कर रही थी, interest rates इतने high था, the cost of borrowing was very high, लोग अपने businesses में invest नहीं कर रहे थे, people were not taking money out of the banks. And the future was looking very weak पाकिस्तान के लिए, right? लोग economically बहुत डरे हुए थे. But we had taken a lot of loans, external lenders से जो हमें repay करने के लिए नहीं था enough. Then we got into an IMF program की वजह से our repayment of loans is now stronger. हमारा current account is stronger because of remittances. Inflation control हो गई है, interest rates नीचे आ गए हैं, and so our economy is doing better. So overall, as we keep telling you guys, macroeconomically everything is perfectly fine in the country, is on a much better track, better trajectory. बहुत सारे लोग हमारे federal budget से खुश नहीं थे because every year, and understandably so, things change. एक कोई permanent policy नहीं है, लेकिन one thing we have to give credit to the government for is के things have been controlled so well. एक इतनी challenging situation में, especially जब geopolitically चीज़ें इतनी intense हो रही हैं, हमारी government is trying their best to control everything and make sure कि जितना minimum rollover करना पड़े onto the awam as possible उतना हो, right? So basically हमारी government with the support of Pak Army got IMF approval of $7 billion as an extended fund facility. वो एक stamp of approval था पाकिस्तान की economy के लिए, जिसकी वजह से हमने confidence देखा जो restore हुआ in the economy, investors का confidence restore हुआ, and it is a stamp के Pakistan is not going to default. So फिर what ended up happening was के federal budget में again आपकी debt securities are taxed more CGT, capital gains tax, than equities now, which means कि अगर आप fixed income की side पे invest करेंगे, savings account, T-bills, PIBs, mutual funds में fixed income वाले जो funds होते हैं उनमें, तो you will get taxed more compared to अगर आप stock market में gain करेंगे amount, right? And the difference is 5%. So there's a big difference. उसकी वजह से more people are coming toward the equity markets, which is beautiful. So हमारी rally शुरू हुई थी 40,000 points से, and right now we're sitting 127,000 points plus. We might even have made a new high today, if I'm not wrong, which is insane. And अगर आप पिछले 20 साल में returns compare करें ना, of the PSX with आपकी top real estate, आप gold को देख लें, PSX outnumbers everything और हम real returns की बात कर रहे हैं, right? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी recently I was having a conversation with someone came to me and was like PSX पिछले हमारी तो stock market पिछले 10 साल से नीचे जा रही है. इस तरह की जो अफवाहें होती हैं ना, दैट्स सो डेंजरस हमारी आवाम के लिए, बिकॉज एक्चुअली कोई जाके चेक नहीं करता, किसी को पता नहीं होता कहाँ चेक करना है, ठीक है? सो वेयर यू चेक दीज थिंग्स आर dps.psx.com.pk, ठीक है? If you want to use international trading apps, वहाँ भी आपके ऐसी 100 को देख सकते हैं. You can use TradingView, you can use Exness, you can use a lot of other international brokers जिनकी charts पे हमारी भी charts available होती हैं. You can use local brokerages की जो real charting tools होते हैं, वहाँ आपको नज़र आएगा एक साफ डिपिक्शन के पिछले 10 साल का अगर रिटर्न की हम बात करें तो what is over 10x. Sure, अगर आप आइसोलेटेड बेयर साइकिल्स को निकाल लेंगे, जो 2-3 साल का बेयर साइकिल आता है, क्योंकि 2-3 साल का बुल रन भी आता है, राइट? बेयर साइकिल इज व्हेन द मार्केट इज डिक्लाइनिंग, बुल साइकिल इज व्हेन द मार्केट इज इंक्रीजिंग. तो एक तो आपकी बेयर साइकिल्स छोटी होती हैं इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स लॉस्ट एंड नंबर ऑफ वैल्यू लॉस्ट, एंड आपकी बुल साइकिल्स लॉन्ग होती हैं. तो इन द लॉन्ग रन आपकी बुल साइकिल हमेशा ओवर पावर करेगी आपकी बेयर साइकिल में. लेकिन अगर आप बुल साइकिल में एंटर होके बेयर साइकिल में एग्जिट ले लेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके पास तो यही कहने के लिए होगा कि आई हैव लॉस्ट सो मच मनी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर फैक्ट्स, अंडरस्टैंड व्हाट अफेक्ट्स एक्विटीज सो मच, अंडरस्टैंड कि डिफरेंट सेक्टर्स किस तरह से मूव करते हैं. आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स खोल के देखें, लर्न अबाउट द कंपनीज कि वो बेचती क्या है, वो करती क्या है. विदाउट नॉलेज ऑफ के
understand कि आपके shares increase on future forecasted valuations. आपको example देती हूँ. अगर एक कंपनी है जो पिछले 5 साल से हर साल 10 से 15% अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को किसी तरह से मैनेज कर रही है मुश्किल टाइम में, एंड फिर जब इकोनॉमिक अच्छा वक्त आता है तो वो एक्सपेंशन देखती है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी मोस्ट प्रॉबली फ्यूचर में भी अगर मैनेजमेंट यही मैनेजमेंट रही तो इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू डू बेटर इन द लॉन्ग रन. दैट्स हाउ यू डू योर स्टॉक पिकिंग. ऑब्वियसली आप इसमें घुसते हैं तो इट्स लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. हमारी पूरी कोशिश होती है एज अ शो टू एम्पावर यू गाइज, टू एक्सप्लेन टू यू गाइज किस तरह से स्टॉक पिकिंग करनी होती है, किस तरह से चीज़ें डिस्कवर करनी होती हैं, देखनी होती हैं और किस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज़ में. बट यू एसेंशियली हैव टू लुक एट कंपनीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आप सोचते हैं कि मैंने बिजनेस करना है, तो हम ये तो अज्यूम नहीं करेंगे कि आपका बिजनेस एक पहले महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, राइट. 2-3 साल तो आपको सिर्फ अपना ओरिजिनल केपेक्स वापस कमाने में लग जाएगा, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, देन यू कैन टॉक अबाउट स्केलेबिलिटी, देन यू कैन टॉक अबाउट ग्रोथ. तो इसी तरह आपकी लोकल कंपनीज उस तरह होती हैं, एंड वी हैव वेरी लार्ज मार्केट कैप कंपनीज. इनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप सिर्फ उनकी ज़मीनों की वर्थ की बात करें कि वो कुछ भी ना करें, बंद पड़ी हुई हों और उनकी सिर्फ ज़मीन, उनके प्लांट्स, उनकी जो इक्विपमेंट है उसी की इतनी वर्थ होती है, राइट. सो करंट मार्केट हमारी ट्रेड कर रही है. कैन वी हैव द चार्ट गाइस सो आई कैन सी कि मैंने किस चीज़ के बारे में बात करनी है. 1700 पॉइंट्स प्लस. सॉरी गाइस, मेरी नज़रें कमज़ोर है, टीवी इतना दूर है, मेरा प्लाज्मा मुझसे ले लिया गया. 127,000 points, okay, and we are how many points plus? 1700 मुझे नज़र आ रहा है ना, जो ग्रीन में लिखा हुआ है. Yeah. Okay, 1760 points plus. Hell yeah, we love it when Pakistan Stock Exchange moving, making big highs. तो moving on to the economic and business segment, Bloomberg Intelligence ने पाकिस्तान को रैंक किया है the most improved emerging market when it comes sovereign credit risk, यानी कि पाकिस्तान की default risk, यानी कि risk के मुल्क अपना कर्जा वापस ना कर सके, बहुत डिक्लाइन हुआ है. It has fallen from 59% to 47%, 11 percentage drop. Largest in that category drop compared to other countries जैसे कि अर्जेंटीना, नाइजीरिया, टूनीशिया. This shift obviously comes because of आपके structural reforms, आपकी macroeconomic stability, IMF के साथ engagement. Credit default swap होता है एक financial tool जहाँ investor अपना risk किसी और investor के साथ swap करता है. And this is all kind of boring. I'm going to switch to the interesting stuff. चाइना ने पाकिस्तान के लिए $3.4 billion के लोन्स रोल ओवर किए और ये मूव पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को पुश करके अराउंड 14 बिलियन पे ले आया. Which me, please make them quiet. Thank you. Can't hear myself. Eastern commercial banks $500 million से आ चुके हैं through multilateral financing tools. ये inflows ना सिर्फ IMF का टारगेट मीट करने में हमारी मदद करेंगे, but it will help Pakistan's external position in getting stronger. Authorities कह रहे हैं कि इकोनॉमी अब स्टेबलाइज हो रही है थैंक्स टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर हमारा $7 बिलियन का जो IMF प्रोग्राम है. लेकिन ये भी क्लियर है कि विदाउट चाइना सपोर्ट पाकिस्तान वुडंट हैव बीन एबल टू डू दिस. जब हम कहते हैं कि चाइना ने रोल ओवर करते, दिस मीन्स के वी हैड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन्स, लेकिन चाइना हैज सेड नो प्रॉब्लम, कीप द मनी फॉर नाउ, यू कैन पे इट ऑफ लेटर. ऑब्वियसली विल हैव टू गिव मोर इंटरेस्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है टू पोजिशन आवरसेल्व्स, मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्गर, बिकॉज हमें पता है with everything that happened in 2022, a very dark year for Pakistan, it's going to take some time for us to position ourselves. ऊपर से recently crude oil इतना expensive हो गया था, that also put Pakistan in a slightly weaker position. So now I'm going to take a very short break. After we come back from the break, we're going to have Mr. Shan Saeed with us. The reason I'm always excited for Mr. Shan Saeed to join us is because उन्होंने last time इतनी अच्छी predictions दी थी regarding forex and commodities. And as you guys know, commodities are a newfound love of mine. मैं खुद बहुत enjoy करती हूँ commodities trade करना. So it's always nice to hear what Shan sir has to say about international economies, geopolitics, and where he sees the world headed. उनका इतना experience है and it really speaks for itself. So stay with us, don't go anywhere, get your नाश्ता, your chai, your coffee, or whatever you want, get comfortable. एक बहुत interesting conversation होने वाली है. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Don't go anywhere, we're going to be right back after a very short break.
Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले let you guys know कि Mr. Shan Said will be joining us today. He has previously on the show given such great calls. इनका जो experience है with global economies and then especially of course Pakistan he has such a great angle that it's almost like he can predict market movements before they even happen. Thank you so much for joining us, Shan Saab. Thank you very much, Michelle. तो सर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को रैंक किया है मोस्ट इम्प्रूव्ड इमर्जिंग मार्केट इन टर्म्स ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रिस्क. तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 59% टू 47%, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी प्रेशर नज़र आ रहा है. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ दिस इज बिकॉज वी आर इन एन IMF प्रोग्राम एंड हमारी कुछ लोन्स भी रोल ओवर हो गई हैं लाइक द वन फ्रॉम चाइना. सो Are we disconnected between perception and reality या क्या ये एक early sign है of a possible genuine turnaround हमारी economy के लिए? मेरा ख्याल है मैं अभी पिछले हफ्ते लाहौर आया हुआ था 2 दिन के लिए, तो मैंने देखा ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं पाकिस्तान में. जब आप लोगों से बात करते हैं ना ऑन द ग्राउंड, तो वो आपको बताते हैं कि हाँ जी बिजनेस थोड़ा सा पिकअप हुआ, शुरू हो रहा है और ओवरऑल जो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो हैं वो थोड़े से पॉजिटिव है. उसकी बेसिक वजह ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज कमिंग बैक इन द इकोनॉमी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इट मींस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जिस मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है. तो जब लोकल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स लोकल इन्वेस्टर्स को देखते हुए आते हैं. आपने देखा होगा हमारी स्टॉक मार्केट जो है बूम कर रही है, रुपए में स्टेबिलिटी आई है, रिजर्व्स बढ़े. स्टेट बैंक ने पहली दफा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बड़ा प्रूडेंटली जो है वो अप्रोच किया है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो आउटलुक जो है इट्स वेरी पॉजिटिव. डेफिनेटली. तो चाइना ने जो अभी $3.4 बिलियन का लोन रोल ओवर हमें दिया है उसकी वजह से इट्स हेल्प अस रीच द $14 बिलियन रिजर्व मार्क, राइट? लेकिन इट्स अगेन ये दिस इज नॉट अ इनकम ऑफ मनी, एक एसेंशली डिफर्ड पेमेंट है. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान असल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बिल्ड कर सकता है या हमेशा ऐसे स्टॉप गैप सॉल्यूशंस और एक्सटर्नल सपोर्ट पे हम डिपेंडेंट रहेंगे? शॉर्ट टर्म में तो यही जो है हमें जो है सोल्यूशन तलाश करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं पकड़ दकड़ 11. कभी इधर से पैसे ले लिया, कभी उधर से पैसे ले लिया, तो ये जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए. लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो यहाँ की डेमोग्राफिक्स है. 250 मिलियन पीपल. तो अगर आप देखिए बहुत पहले फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया था कि अगले 10 से 15 साल में वो इकोनॉमी जो है रेलेवेंट रहेगी जहाँ डेमोग्राफिक्स है, जहाँ आबादी है, जहाँ कंजम्पशन है, जहाँ इन्वेस्टमेंट है. तो जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान को देखते हैं 250 मिलियन पॉपुलेशन. सो दैट मेक्स पाकिस्तान वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर दोज ग्लोबल इन्वेस्टर्स. तो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में हमें यही अरेंजमेंट जो है वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म में यस ऑब्वियसली जो है हमारे ग्रोथ आउटलुक और पोटेंशियल जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay, lovely. So, State Bank का आपने mention किया था कि they're monitoring the monetary policy very carefully. They're being prudent about it. तो they're also controlling हमारा जो dollar access है, right? Reserves बहुत carefully manage हो रहे हैं. Rupee का control is उसकी depreciation is being managed very carefully. 5 पैसा से 15 पैसा daily. तो आपको लगता है कि this is in your opinion, would this be considered smart monetary management या ये market distortion backfire कर सकती है in the long run because it's not sustainable? मेरे ख्याल है पिछले 15 से 20 साल में जो सेंट्रल बैंक का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है. And central banks have taken sole responsibility in delivering economic outcomes because nobody else is taking the responsibility. तो मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने पहली दफा, मैं स्टेट बैंक को उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि जी स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है बड़ा प्रूडेंट रखा है, ओवरऑल रुपए में स्टेबिलिटी रखी है, क्योंकि हर करेंसी में 3 वेरिएबल्स होते हैं. यू हैव स्ट्रक्चरल, यू हैव सिक्लिकल एंड यू हैव पॉलिटिकल. ये करेंसी की आउटलुक में जो है वो मदद देते हैं और ये फोकस करते हैं करेंसी का ओवरऑल जो है आउटलुक क्या है. तो मेरा ख्याल है स्टेट बैंक हैज done a good job
on a scale of 1 to 10, I would give 7 to State Bank in managing financial stability, in managing structural stability in Pakistan rupees, क्योंकि 2022 और 2023 में रुपए का बड़ा बुरा हाल था और लोग तो 350 और 400 की बात कर रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक ने इसको बड़ा अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन एक और बात जो बड़े कम लोग जानते हैं, जो आपके करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, द जेंटलमैन ब्रिंग्स ह्यूज क्रेडिबिलिटी टू द मार्केट। बड़े कम लोगों को पता है कि ही हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एंगेजिंग विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ये सीईओ थे जेपी मॉर्गन के एशिया पैसिफिक में, बेस्ड इन सिंगापुर, और मैं इनकी इसलिए बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं दैट ही द जेंटलमैन थ्रू आउट हिज करियर, इन्होंने अपना जो प्रोफाइल है वो बड़ा जबरदस्त रखा है। द मैन ब्रिंग्स ह्यूज क्रेडिबिलिटी। तो मेरा ख्याल है आपके फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को एक फेवरेबल नजर से देखते हैं। तो मेरा ख्याल है हैविंग अ फाइनेंस मिनिस्टर who has got global recognition and who has got global networking. At the end of the day, it's all about global networking. किस तरह आप engage करते हैं financial institutions को, किस तरह आप engage करते हैं stakeholders को in delivering the narrative of Pakistan, that Pakistan has got potential to grow and Pakistan has got the potential to deliver economic outcome for the masses at the macro level. तो मेरा ख्याल है जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे 2 दफा मिला हूँ सिंगापुर में। तो मेरा ख्याल है उनकी वजह से स्टेट बैंक के ओवरऑल जो मेजर्स हैं, तो बड़े सारे वेरिएबल्स मिला के जो हैं उससे पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। So how did you feel about the federal budget? आपके लिए what were the most important things that came out of it and what is going to help our country? मेरा ख्याल है बजट वही है जो पिछले साल था। जो ओवरऑल बजट के जो मुझे जिस्ट नजर आई है वो यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए, कंटिन्यूटी रखी जाए और हमारे जो डेट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट्स हो गए। तो रिडक्शन ऑफ डेट्स, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ स्टेबिलिटी, ये है द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। डेफिनेटली। सो सर, ऑफ कोर्स हमें एक चीज़ पता है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है द ट्रिकल डाउन ऑफ करप्शन, राइट। एलीट कैप्चर बहुत है। अ लॉट टाइम्स पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि आपकी जो बहुत सारे लोग हु आर कनेक्टेड टू और आर देमसेल्व्स पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर, वो मिसयूज़ करते हैं ये पावर और उसकी वजह से वो ही टैक्स नेट को इतना अवॉइड करते हैं। तो आई हैड अ क्वेश्चन कि internationally there's a lot of countries that are using the blockchain for transparent centralized auditing systems, right? How do you feel about that? Because obviously उसके adoption में and to build such a software system it would maybe take a couple of years, लेकिन do you think that is something जो पाकिस्तान को help कर सकता है in making its tax net more transparent, more prudent? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट जो है वो रेज किया है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और जब आप इकोनॉमी को डिजिटाइज कर देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट में आती हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्लॉकचेन का यूज़ करना, मेरा ख्याल इट्स हाई टाइम दैट FBI शुड मूव इनटू दिस डायरेक्शन एट अ वेरी फास्ट पेस, क्योंकि कितने अरसे तक यही 25-30 लाख 35 लाख जो टैक्स पेयर्स हैं ये पूरे मुल्क को संभालेंगे। मेरा ख्याल है जो लोग टैक्स के नेट में आना जिनका जरूरी है वो आए हैं, वो इसलिए हो सकता है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। दूसरा ये कि बहुत अरसे पहले एक सजेशन थी कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसी को टैक्स नंबर बना दें। लेट्स से मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है 42201 और उसी को जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड टैक्स नंबर बना दें, तो उससे जो है और लोग भी जो है वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और जो लोग नहीं टैक्स देते उनका भी जो है वो पता चल जाएगा। डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल है चीजों को स्ट्रीमलाइन होना चाहिए ताकि हमारा, क्योंकि आप इसी मुल्क से अर्न कर रहे हैं, तो जब आप जिस मुल्क से अर्न करते हैं उसको फिर आपको पे भी करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर मलेशिया में रहता हूँ, जो मैं अर्न करता हूँ मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को उसकी टैक्स देता हूँ। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम दैट वी शुड pay our dues to the country. Definitely, definitely. I'm completely with you. I was actually in Malaysia for a couple of days for a crypto conference. So while I was there,
someone actually told me कि because मैंने Malaysia last visit किया था, I think जब मैं 8 साल की थी, right? So it's been 20 years. So it was so wildly different. There has been so much growth. So we were just having a conversation about, you know, what Malaysia did, what their government did, and someone actually brought up a point कि जिस मॉडल पे मलेशिया ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बेस की है, that was proposed in the 1980s, I believe, or 1990s by a Pakistani economist of the Pakistani government. Is that true? That's right. क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको एंगेज करती रहती है कि जी आप हमें पॉलिसी लिवर्स बताएं कि हम अपनी ग्रोथ जो है वो किस तरह मेंटेन करें, हम अपनी जो मोमेंटम, इकोनॉमिक मोमेंटम, उसको किस तरह जो है आगे लेके जाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाएं, अपनी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका मोमेंटम जो है किस तरह वो जो है मेंटेन रखा जाए। तो बहुत सारी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट्स को जो है मुख्तलिफ टाइम पे वो उनको काउंसिल करते रहते हैं, और गवर्नमेंट उनकी जो काउंसिल है बड़ा सीरियसली लेती है। Definitely. So, coming back to talking toward what is holding up our reserves right now, right? एक बहुत critical चीज़ जो it's gaining more momentum and more importance, which is a little dangerous, remittances. Because remittances is not a stream of revenue. It is just people sending money back to their families, loved ones. तो वो एक reliable जगह नहीं है. तो how do you feel about the amount of reliability that we are like dependent on remittances? मेरा ख्याल है इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी में सिचुएशन है उससे बड़े लोग डरे हुए हैं। कोई अपने लोग बैंक में पैसे नहीं रख रहे इतने ज्यादा। जैसे मैं आपको मलेशिया का बताता हूँ, यहाँ पर बहुत कम लोग पैसे जो है कंज्यूमर जो है वो बैंकों में पैसे रखते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, कमोडिटीज में, रियल स्टेट में। रियल स्टेट हैज बिकम अ न्यू ग्लोबल करेंसी। तो मेरा ख्याल है जो रेमिटेंसेस का अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका। ज्यादातर जो लोग जो हैं वो अपने पैसे वो वापस अपनी होम कंट्रीज में भेज रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तानियों की वो और बढ़ेंगी। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे अपना पैसा बैंक में रखने के लिए, स्पेशली इन यूएस, इन यूके, इन यूरोप, जहाँ पर हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे मुझे। लेकिन बैंक्स में जो है जो लोगों का जो पहले था कि बैंक में पैसे रखें एंड इस पीस ऑफ माइंड, अब वो नहीं है इतना जो पहले था। Okay, lovely. So that is not so much of a dangerous signal for us then. Okay, lovely. So last time आपने हमें we had conversations about crude oil, about silver, about gold. आपने कुछ forex pairs का भी बताया था. Would you like to talk about any specific commodity, where you think crude oil is headed? क्या ये settle हो गया around the $64 per barrel area? या you think it's going to decrease or increase from here? मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में मेरा ख्याल है फरवरी में और अप्रैल में कहा था कि अपनी गोल्ड और सिल्वर होल्डिंग इंक्रीज रखे और डॉलर को जो है वो ऑफलोड कर दे। सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड इज अप 27% YTD, सिल्वर इज अप 20% YTD, डॉलर इज डाउन 10.8% YTD। और कल रात को ही मैंने अपनी लिंक्डइन की पोस्ट पे एक आर्टिकल शेयर किया जो फाइनेंशियल टाइम्स में आया था कि ये वही सिनेरियो हो रहा है डॉलर का जो 1970s में था। तो डॉलर लॉस 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन 1973। अगर आप देखिए, पाउंड स्टर्लिंग इज अप 11.3%, यूरो इज अप 12.5%, स्विस फ्रैंक इज अप 13.5%, जापानीज येन इज अप 8% YTD। जहां तक ऑयल का ताल्लुक है, 13 जून ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, ऑयल टच 77, 78 and is now hovering around 66 to 67 dollars per barrel। हमने यहाँ पर लोकली मलेशिया में जो प्रेस और मीडिया है उसको बताया था कि इन द शॉर्ट रन वी एक्चुअली foresee oil trading between 64 and 67 dollars per barrel। In the long run, when we talk about long run, we are talking about 3 to 6 months, the oil will be meandering around 77 to 83 dollars per barrel, and by year end we expect oil prices to hover between 83 to 117 dollars per barrel, based on the premise कि आप कोई भी इस वक्त अखबार या मैगजीन उठा के देख लें, whether it's foreign policy, whether it's foreign affairs, Atlantic,
वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब यही कह रहे हैं कि जो ईरान और इसराइल की जो एस्केलेशन है ये बढ़ सकती है, और अगर ये बढ़ी तो ऑयल जो है वो मजीद बढ़ सकता है. बट देर आर हिकअप्स, देर आर ओवर सप्लाईज इन द मार्केट. JP Morgan कह रहा है कि उनकी कॉल है $60 per barrel, but they also expect oil to go up to $113 per barrel if this escalation, if this geopolitical risk, it goes out of hand. So मेरा ख्याल है overall we are still quite bullish, और मैं कॉल साल के शुरू में देखता हूँ whether I'm right, whether I'm wrong. Last year I was on Bloomberg, मैंने कहा कि जी I made a wrong call on US dollar. So I'm very open in that. So if I make a wrong call, I say it on live TV show. That's not a problem for me. Lovely, lovely. I actually, I was अगर हम technical charts देखते हैं तो crude oil की resistance वहीं around $75-77 per barrel आ रही थी. And another thing is कि I think कि because आपकी दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमिनॉन कि क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव होगा, हर मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हर मुल्क की करेंसी सफ़र करेगी, एंड एवरी वन इज़ गोइंग टू, मतलब आपकी अवाम ही सफ़र करती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, राइट. सो इट इज़ अज्यूम्ड कि अराउंड दैट एरिया, दैट इज़ वाई सडनली सारे मुल्क, वेदर इट इज़ फ्रांस, वेदर इट्स रशिया, वेदर इट्स द US, एवरी वन वॉज रेडी टू मीडिएट between Iran and Israel, right? So do you think इस तरह का जो sentiment है of countries wanting to at least protect their own interests, वो बीच में नहीं आ जाएगा before crude oil hits such a critical point like $100? बिल्कुल यही हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें, if you go back in 2008, on 11 July 2008, I was in US when I was pursuing my MBA. तो उस वक्त प्राइस जो थी $147 और 17 सेंट्स थी 11 जुलाई को, एंड आई वाज सिटिंग विद माय नोबल लॉरेट प्रोफेसर, और मैंने कहा ये प्राइस नीचे जाएगी. सो आई थॉट प्राइसेस वुड go down to $94 per barrel by 31st December 2008, but prices went down to $34 per barrel on 31st December 2008, and on 31st December 2009 oil prices were trading at $79.80. तो मैंने कहा प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ी ज्यादा है. मोस्टली जो कंपनीज हैं यूएस में, स्पेशली दोज इन्वॉल्व्ड इन शेल गैस, उनकी जो ब्रेक इवन है वो है $60 per barrel. सो प्राइसेस कैन नॉट गो डाउन बिलो $60 per barrel. इस तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबका ब्रेक इवन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, नाइजीरिया, सबका जो ब्रेक इवन जो है वो फर्क है. Definitely. तो मेरा ख्याल है ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म में इस तरह हुआ करती रहेंगी. आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऑयल $100 3 डिजिट्स को हिट कर गया तो इन्फ्लेशन विल कम बैक. ऑब्वियसली द मार्केट इज वेरी पैनिकी, इन्वेस्टर्स आर नर्वस. सो बैकवर्डेशन फेज जो ऑयल में होती है, when your spot price is higher than your future price, it is already in the market. And investors are actually nervous कि जी अगर ये स्यापा जो है इजराइल और ईरान का ये बढ़ गया और एस्केलेशन और बढ़ गई, तो ऑयल को सिक्योर किस तरह करेंगे. टैरिफ्स हैं, ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, और ऊपर से ये इन्फ्लेशन का ये नया वेरिएबल आ जाएगा. सो हाउ यू गोइंग टू कोप विद इट, हाउ यू गोइंग टू मेंटेन इकोनॉमिक मोमेंटम फॉर मेनी कंट्रीज. और यूरोप, यूएस, जापान, यूके, आपने देखा होगा इन इकोनॉमीज का तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया हुआ. वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल है नहीं, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब्स केस हो रही हैं. तो मेरे को ओवरऑल सेंटिमेंट काफी बेरिश हो जाएंगे अगर ऑयल जो है वो $100 पर बैरल पे हिट कर गया. Definitely. So, abhi between everything that was going on, especially between China and US, right? वो उनकी tariff war is coming toward a truce. China at the same time अपने आप को relaunch कर रहा है as they're already a trade leader, लेकिन also like a tech leader, right? तो हमारी जो strategic alliance है and regional positioning also with China, do you think that could benefit us in some way? Could we see more JVs between local companies and Chinese companies? जैसे कि there's one between service, right? So they have a joint venture with a Chinese company. So do you think we can see more of those in the future? Absolutely. जब मैं आया था मुझसे किसी ने सवाल किया था कि जी पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक अलायंस यूएस के साथ रखना चाहिए और चाइना के साथ. मैंने कहा था हमें चाइना के साथ रखना चाहिए क्योंकि चाइना हमारा नेबर है. चाइना टेक्नोलॉजी में आगे, हमें सबसे अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने चाहिए. यूएस बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, हमें यूएस के साथ भी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, चाइना के साथ भी. लेकिन हमें जो मुल्क सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है
इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ हमारी ग्रोथ पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए, वेदर इज एग्रीकल्चर, वेदर इज मैन्युफैक्चरिंग, वो है चाइना. एंड चाइना हैज ऑलवेज स्टूड बाय अस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. तो मेरा ख्याल है वी नीड टू वैल्यू चाइना. और मैं हमेशा अपने चाइनीज क्लास वाले से कहता हूँ दैट वी आर आयरन ब्रदर्स. तो मेरा ख्याल है कि अभी रिसेंटली जो 4 दिन की मजाक हुआ था, इंडिया ने हमारे साथ किया था, हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज की और चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज करके हमने इंडिया को बताया दैट डोंट मेस अराउंड विद पाकिस्तान. तो मेरा ख्याल है चाइना के साथ हमारा अलायंस होना बड़ा जरूरी है. और चाइना जो है हमेशा उन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है. Definitely, I'm completely with you on that one. Can we say कि अगले 5 से 7 साल में where the world is going, the way US is, आपने अभी उनकी करेंसी की भी बात की, and we can see they're losing the strong arm जो उन्होंने बहुत सख्ती से रखा हुआ था over the past few decades, right? Do we see this global power dynamic shifting toward China? मशाल, मुझे 5-10 साल का तो नहीं पता, मैं तो आपको खाली इसी साल का बता सकता हूँ बिकॉज थिंग्स आर सो वॉलेटाइल एंड दे आर सो अनसर्टेन. यस, यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है इट विल बी ओवर बट इट विल नॉट गो अवे. यूएस डॉलर का जो रिजर्व स्टेटस है वो रहेगा. बट कहना कि यूएस डॉलर से हम हट जाए ये नहीं हो सकता. तो मेरे ख्याल है अगले 1 से 2 साल में तो यूएस डॉलर रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन हमें और भी रिजर्व्स को देखना चाहिए. बहुत सारे सेंट्रल बैंक जो हैं वो गोल्ड को अपने रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं. पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2001 में जब गोल्ड प्राइस थी $275 पर आउंस. लेकिन उस वक्त जो है स्टेट बैंक ने इतनी कोई एफर्ट नहीं की और उस वक्त पोजीशन नहीं ली. जो मुझे इस वक्त सबसे स्मार्टेस्ट सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में नजर आती हैं वो है रशियन सेंट्रल बैंक. In 2016 she offloaded her US Treasury position and she took long position in gold. So I think Alvira Nabulina, she's the central bank chief in Russia. She's a very smart woman and I respect her because she took position in tangible assets. Definitely. तो tangible assets में पोजीशन लेना चाहिए और जो अलवीरा नबरीना कर रही है मेरा ख्याल उसको फॉलो करना चाहिए. Definitely. Well, thank you so much for being with us, Shan Saab. Once again, it's always having a conversation with you. And आप लोगों से मैं मिलूंगी कल सुबह as usual 11 a.m. I'll see you then. Till then, take care of yourselves. This was the Inside Scoop. I am Ashar Khan. Khuda Hafiz.